لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الذي خلق السماوات والأرضين، الذي جعل حبيبه نبيا وآدم بين الماء والطين. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، المبعوث في الأميين، سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على الملحدين والمشركين والكافرين والمنافقين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، پروردگار عالم اس آیہ کریمہ میں ایک نفس سے خطاب کر رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، مطمئن نفس اور سکون زندگی گزارنے والے شخص، اپنے رب کی بارگاہ میں اس حالت میں واپس آ جا کہ تو اپنے پروردگار سے راضی ہے اور تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہے۔ عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ اس آیہ کریمہ کے سلسلے میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں، سب سے پہلے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس آیہ کریمہ کا ابتدائی یعنی ترجمے ہی سے جو بات ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ کہ پروردگار عالم اپنے کسی بھی بندے کے متعلق یہ نہیں چاہتا کہ وہ بندہ ہمیشہ کے لیے اس کی بارگاہ میں جائے اور دونوں میں سے یعنی یہ جانے والا اور جس کی بارگاہ میں جا رہا ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے راضی نہ ہو۔ لہذا اگر ہمیں اس کی بارگاہ میں جانا ہے تو جانا تو طے ہے، کوئی اس دنیا میں رہنے کے لیے مستقل آیا ہے نہیں، آیا ہے تو جانا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو اپنے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، اپنے حساب سے زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ ہم آئے ہیں اللہ کے لیے اور سارا حساب کتاب کرنے کرانے کے لیے، اپنی زندگی کا حساب دینے کے لیے جانا ہے اسی کی بارگاہ میں۔ اور جب ہم اس بارگاہ میں جائیں گے تو اس بارگاہ کے علاوہ کوئی اور جانے کا راستہ نہیں ہے، اس سے آگے کا ہم دنیا میں ہے تو آگے کے لیے ہمارے پاس راستہ موجود ہے کہ اس وقتی دنیا جو مٹ جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے اپنی تمام چیزوں کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور گیا قیام گاہ ہے، ایک اور جگہ ہے جہاں پر ہمیشہ ہمیں رہنا ہے۔ تو جب وہاں ہمیشہ ہمیں رہنا ہے تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جس کے پاس رہنا ہے، جس کے سائے میں رہنا ہے، جس کی بارگاہ میں رہنا ہے، اس نے اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے کہ تم مجھے راضی کر پا رہے ہو کہ نہیں، یہ دنیا ہمارے لیے ٹھکانہ بنایا ہے۔ وہاں جانے کے بعد ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اس کی خوشی کا کوئی ذریعہ تلاش کریں، کیوں کیسے خوش ہوگا؟ نہیں، اسی دنیا میں ہم ایسے سامان، ساز و سامان اور ذخیرے آخرت اکٹھا کر لیں کہ جب آخرت میں خدا کی بارگاہ میں جانا ہو تو چونکہ اس کی بارگاہ میں جانا ہے تو اسی
खुशी ना खुशी को इसी कायनात में मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। अगर हमने इस दुनिया में जिंदगी गुजारी लेकिन हमारी जिंदगी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक नहीं थी, तो जब हम उसकी बारगाह में जाएंगे तो उसकी मर्जी चाहे जहां हमें डाल दे। और ये भी हमने तो सिर्फ बयान करने के लिए कह दिया कि उसकी मर्जी, उसने तो अपनी मर्जी इसी कायनात ही बता दी है, मेरे हिसाब से जिंदगी गुजारो। हमने तुम्हें हाथ दिए हैं, हाथ को हरकत उसी एतबार से करना जैसे हम चाहते हैं। आंखें दी हैं, देखना उधर ही जहां हमारी मर्जी हो। जुबान दी है, बोलना वही बातें जिसके मुताबिक हम राजी हैं। तो लिहाजा कायनात में राजी अगर तुमने अल्लाह को कर लिया है तो अल्लाह तुम्हें वहां राजी रखेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस कायनात में हर कोई हमेशा रहने के लिए नहीं जाएगा, और परवरदिगार आलम ने दुनिया में जिंदगी गुजारने का मकसद इंसान को बता दिया, सिर्फ मेरी इबादत या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना। इसमें परवरदिगार आलम खिताब कर रहा है कि मुतमइन नफ्स से और सुकून नफ्स से। हम अब इसी दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं। इंसान का मिजाज ये बन चुका है कि जैसे थोड़ा सा ऊंची मंजिल और आला दर्जे तक पहुंचता है तो करता क्या है, अपने से बस पस्त दर्जा वाले की बात सुनना गवारा नहीं करता। यूं मजमे आम में तकरीर कर देना, स्पीच कर देना, भाषण दे लेना नेताओं का एक अलग बात है, लेकिन इंफरादी तौर से, शख्सी तौर से किसी को बुला के बात करे। भाई जब ये लोग आते हैं ना इलेक्शन के जमाने में तो कहते हैं तुम हमारे हो, ये आवाम हमारी है, ये पब्लिक हमारे, लेकिन जब जीत कर जाते हैं तो कभी चेहरा दिखाते नहीं है। तो अजीज रहने हुकूमत चाहे गांव की हो जिसका हाकिम प्रधान हुआ करता है, शहर की हो जिसका हाकिम मेयर हुआ करता है, हुकूमत बहरहाल हुकूमत होती है। और जो हुकूमत के अदना दर्जे पर भी पहुंच जाता है, दो चार नफर को ऊपर भी अगर हुक्मरानी होती है, तो अगर वो अल्लाह वाला नहीं है तो अपने से पस्त दर्जा से बात करना गवारा नहीं करता है। अब हुकूमत का होता जैसे जैसे हुक्मरानी का दायरा बढ़ता चला जाता है, इंसान का दायरा इख्तियार वसी होता चला जाता है, वैसे वैसे इस अकड़ में भी इजाफा होता चला जाता है। वो अपने से पस्त दर्जा लोगों से बात करना गवारा नहीं करता। गांव पे हुकूमत है, शहर पे हुकूमत है, कस्बे पे हुकूमत है, जिले पर हुकूमत है, सूबे पर हुकूमत है, वजीर आला बन गया, अब तो पारा और चढ़ गया, टेम्परेचर और ज्यादा उसका दिमाग का हो गया। और अगर वजीर आजम हो गया तो अजीज़ान गिरामी वजीर आजम होने के इंसान न मालूम क्या क्या जतन कर देता है, लेकिन जब उस मंजिल तक पहुंचता है तो इतना दर्जा हाई हो जाता है कि अपने से पस्त दर्जे वाले को देखना भी गवारा नहीं करता है। तो अजीज़ान गिरामी ये इंसान का मिजाज बन चुका है, इंसान की फितरत खानिया ये बन चुकी है कि जब किसी आला मंजिल पर पहुंच जाए तो अपने पस्त दर्जा लोगों से बात करना भी गवारा नहीं करता। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी हमारा परवरदिगार अल्लाह तबारक व तआला वो नहीं है जिसकी हुकूमत किसी एक गांव पर हो, किसी एक सूबे पर हो, किसी एक शहर पर हो, किसी एक सूबे पर हो, बल्कि वो तो एक मुल्क नहीं कई मुल्कों पर हाकिम है, कई मुल्कों पर नहीं, एक दुनिया पर नहीं, बल्कि वो जो उसने जितने अवालिम और आलमीन खल्क किए हैं सबके ऊपर वो हाकिम है और रब्बुल आलमीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो सिर्फ एक आलम, एक कायनात और एक दुनिया का परवरदिगार नहीं है, बहुत सारे आलम और दुनिया ऐसी हैं जिनका वो परवरदिगार है, वो अहकमुल हाकिमीन है। इन हाकिमों की तो उसकी नजर में कोई हैसियत ही नहीं है। वो परवरदिगार इंसानों के मिजाज को
पैगंबर की आजमत है कि पैगंबर इस्लाम को परवरदिगार आलम ने ये आजमत अता की कि उसकी उम्मती को रोजाना 5 मरतबा मेराज नसीब हो। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके रादियतम मर्दिया, ऐ मुतमइन नफ्स अपनी रब की बारगाह में वापस आ जा। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, नफ्से मुतमइन परवरदिगार आलम हर किसी को गुफ्तगू के लायक नहीं समझता। अच्छा, इत्मीनान नफ्स के भी दर्जात हैं, कोई मुकम्मल इत्मीनान नफ्स का हामिल है, पुरसुकून जिंदगी का हामिल है, तो परवरदिगार आलम उसी के एतबार से उससे गुफ्तगू करता है। जाहिर सी बात है, हर कोई तो हर किसी को यूं खुश और राजी नहीं रख सकता। और यहाँ रिदा का मसला है अल्लाह और बंदे के दरमियान रादियत मर्दिया, कि तू अपने रब से राजी है और तेरा रब तुझसे राजी है। ये सनद हर किसी को नहीं मिलती। और ताज्जुब की बात यह है कि परवरदिगार आलम हमारे मिजाज से हटकर एक बात कह रहा है। ये कायनात जहां हर तरह की परेशानी है, मुसीबतें हैं, बलाएं हैं, आजमाइशें हैं, आलाम व मसाइब हैं, और इस कायनात में अगर किसी को मुतमइन नफ्स कहा जाए, पुरसुकून जिंदगी का हामिल कहा जाए, तो ताज्जुब की बात तो हो नहीं है। और सबसे बड़ी बेचैनी और परेशानी वाली बात तो यह है कि जिस कायनात में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, इस कायनात में हमारे जिंदगी के मुतालिक हमें ये भी नहीं मालूम है कि आइंदा लम्हा हमारे लिए कैसा होगा। तो यहाँ इत्मीनान कैसा, यहाँ सुकून कैसा। लेकिन परवरदिगार आलम इसी कायनात के किसी शख्स के लिए कह रहा है नफ्स मुतमइन्ना के हामिल, यानी कायनात भी इस लायक है कि अगर कोई अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे तो उसे नफ्स मुतमइन्ना हासिल हो सकता है, वो नफ्स मुतमइन्ना का हामिल हो सकता है। मुफस्सिरीन ने इस आय करीमा में नफ्स मुतमइन्ना से मुराद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी को लिया है, क्योंकि कायनात में कोई भी इतना बड़ा साबिर और मसाइब व आलाम में घिरा हुआ नजर नहीं आया, लिहाजा आपकी ज़ात मुबारक ही इस नफ्स मुतमइन्ना के हामिल है। अच्छा, मुफस्सिरीन ने ये तो कह दिया कि नफ्स मुतमइन्ना वो भी ऐसी शख्सियत के मुताल्लिक जिसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा हमारे एतबार से मुसीबतें हैं, आजमाइशें हैं, बलाएं हैं, बल्कि आपका आखिरी वक्त वो था जिसका नाम ही यानी आखिरी सरजमीन इस जिंदगी की वही है कि उस सरजमीन का नाम ही कर्ब और बला है, कर्ब बला। अब उसके मुताल्लिक ये कहा जाए कि ये नफ्स मुतमइन्ना का हामिल है, आप कबूल करेंगे? आपकी अक्ल में आ रहा है जिसके सामने सारी मुसीबतें हों, आजमाइशें हों, बलाएं हों, उसके बावजूद कहा जा रहा है ये नफ्स मुतमइन्ना है। इसका मतलब यह है कि इत्मीनान वो नहीं है जिसे हम आप समझ रहे हैं, बल्कि इत्मीनान का असल मतलब और असल माना तो वही समझाएगा जिसने इस लफ्ज को और इस माना को इजाद किया है। कि इत्मीनान किसे कहते हैं, इत्मीनान कैसे हासिल होता है, तो आवाज की याद रखो, इत्मीनान तुम्हें ऐसे हासिल होगा कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। तुम इधर उधर इत्मीनान और सुकून को तलाश मत करो, अल्लाह का तज़किरा करते चले जाओ, तुम्हें इत्मीनान हासिल होता चला जाएगा। तज़किरे परवरदिगार के जिक्र में, अल्लाह के जिक्र में इत्मीनान की कौन सी ऐसी बात है? तो भैया जो तज़किरा और जिक्र का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जुबान से कह दिया जाए अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभानअल्लाह, सिर्फ जुबानी यानी लक़लक़े लिसानी का नाम जिक्र परवरदिगार नहीं है, बल्कि अल्लाह को हर लम्हा अपने अंदर अपने जिस्म की गहराइयों में उतार लो, ज़हन में और दिल में अल्लाह को बिठा लो। जब भी जिंदगी का कोई काम करना चाहो तो अल्लाह फरामोश ना होने पाए। और जब ऐसी जिंदगी इंसान गुजारता है तो नतीजा ये होता है कि आइंदा लम्हा अगर दुखों से भरा भी होता है, दर्द से लबरेज भी होता है, मुसीबतों में भी होता है, तो फिर ये इंसान मुतमईन रहता है, क्योंकि इसकी यहाँ की जिंदगी न सही, अगर यहाँ मुसीबतें भी हैं, यहाँ परेशानियां भी हैं, तो इसको भी नेमत समझकर कबूल कर लेता है कि अगर परवरदिगार आलम ने
मर्दिया, दो लफ्ज हैं कि तुम अपने परवरदिगार से राजी हो, तुम्हारा परवरदिगार उससे राजी। अच्छा, एक बात है जो हमारे आम तौर से राइज है। अब तक तो हम ये समझ रहे थे कि परवरदिगार हमसे राजी हो जाए, परवरदिगार हमसे राजी हो जाए, लेकिन इसमें पहले परवरदिगार आलम अपने आप से राजी होने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो ये कह रहा है कि तुम मुझसे राजी हो जाओ। रादियतन मर्दिया, मैं तुझसे बाद में राजी होऊंगा, पहले लफ्ज आए रादियतन, ये नफ्स राजी हो जाए। ये भी अजीब गरीब चीज है। अच्छा बताएं कि परवरदिगार आलम अल्लाह तबारक व तआला वो देने वाला है कि लेने वाला है? वो तो देता है ना। अगर मुझे कोई शख्स कोई चीज दे और आइंदा भी उससे उम्मीद हो तो मेरी ख्वाहिश क्या होगी कि ये जो देने वाला है, यानी मैं ऐसा किरदार अख्तियार करूं, अपनी जिंदगी अख्तियार करूं, ऐसा तर्ज जिंदगी अपनाऊं, जिंदगी के किसी हिस्से में कोई ऐसा काम ना हो जिससे ये देने वाला नाराज हो जाए, क्योंकि अभी तो इसने दिया है, लेकिन अगर कोई ऐसी हरकत मुझसे सरजद हो गई जिसकी वजह से ये नाराज हो जाएगा, तो अभी तो जो दे दिया उसके अख्तियार में हो, नाराजगी इस हद तक बढ़ गई कि ये भी वापस ले सकता है और आइंदा तो कुछ देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लिहाजा होता यही है ना कि हमारी कोशिश ये होती है कि जो देने वाला है, जो हमें दे रहा है, जो अता कर रहा है, अपनी जिंदगी उसके राजी होने और न होने के मद्देनजर गुजारी जाए। तो लिहाजा देने वाले की खुशी और खुश होने और न होने का ख्याल रखा जाता है। कहीं आपने ये देखा कि देने वाला लेने वाले से ये चाहे, यानी ये शख्स जो लेने वाला है वो देने वाले के मुताबिक ये चाहे कि वो हमसे राजी हो जाए, यानी वो खुद जो है, यानी हम एक शख्स जो मांगने वाला है, दूसरा जो देने वाला है, मामला बरक्स नहीं होता, बल्कि देने वाला हमेशा, यानी देने वाला लेने वाले की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे, ये नहीं होता है, बल्कि देने वाला लेने वाला देने वाले की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। परवरदिगार आलम ने हमें सब कुछ दिया, ये कायनात हमारे लिए पैदा की, नेमतें हमें दी, हमें हमारा पूरा वजूद दे दिया, फिर भी वो हमसे कह रहा है कि तुम कुछ ऐसा करो कि तुम हमसे राजी हो जाओ। ये तो अजीब गरीब चीज है। परवरदिगार आलम अपनी रजा, यानी बंदा उससे राजी हो जाए, लेने वाला देने वाले से राजी हो जाए, ये मंतकी अजीब है। जबकि उसने सब कुछ दिया भी है और जो कुछ वो हमसे चाहता है उसका आइंदा इसका अजर भी देगा, जजा भी देगा। भाई हमने उसके लिए क्या किया था कि उसने हमें इतना मुकम्मल वजूद दिया है, आंखें दी, हाथ दिए, पैर दिए, जिस्म की सारी ताकतें दी और इसके अलावा आफाक, ये कायनात उसने हमें अता की है ताकि हम इन तमाम चीजों से मुस्तफीद हो, फायदा उठाएं। क्या हमने उसके लिए कुछ किया था जिसके नतीजे में उसने हमें ये दिया है? हमने तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया था, फिर भी उसने दे दिया। उसके बावजूद वो क्या कह रहा है कि तुम क्या करो, रादियत, तुम राजी हो जाओ मुझसे। मामला उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा? अजीब गरीब है कि नहीं? ये कि देने वाला चाहता है कि ये उससे राजी हो जाए, लेने वाला उससे राजी हो जाए। तो इसी मरहला है अजीब गरीब, क्योंकि हमने कायनात में जिंदगी उस फितरत के मुताबिक जिंदगी गुजारने के आदी नहीं रह गए जो उसने फितरत बनाई थी। हमने एक नई अजीब गरीब फितरत इख्तियार कर ली है, लिहाजा उसके जो हकाम है, उसका जो बयान है, हमें तो अजीब गरीब लगने ही लगने हैं। लिहाजा परवरदिगार आलम ये चाहता है कि तू मुझसे राजी हो जाए। अब तक तो हम ये कह रहे थे कि वो राजी हो जाए, वो कह रहा है तुम राजी हो जाओ। बंदा ये चाहता है कि देने वाला राजी हो जाए, ये लेना और देने वाला चाहता है कि लेने वाला राजी हो जाए। मेरे ख्याल से बात वादे हो गई होगी। मामला किस तरीके
कहा नमाज दे दी, नमाज पढ़ो। उसने पैगाम दिया है ना, हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है, तरीका दिया है, एक बरनामा हयात दिया है, अहकाम दिए हैं, कुछ चीजें हमें दी हैं। क्योंकि होता क्या है, होता यह है कि हम उसकी मखलूक हैं, कायनात उसकी मखलूक है, और पैदा करने वाला जानता है कि ये कौन सी चीज कैसे इस्तेमाल की जाए, तो इस्तेमाल करने वाला महफूज रहेगा, जो चीजें इस्तेमाल की जा रही हो महफूज रहेंगी। लिहाजा उसका तकादा यह है, उसकी रहमत और लुत्फ का तकादा यह है कि हमसे क्या चाहे, हमसे ये चाहे कि हम वैसी ही जिंदगी गुजारे जैसे वो चाहता है। इसके लिए परवरदिगार आलम हमें राजी करना चाहता है। देखो हमने तुम्हें नमाज दी, तुम इसको खुशी से ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? तुम हमारे इस हदिया, इस अता जो नमाज है, इसको तुमने, इससे तुम राजी हो या नहीं हो? अगर हमने खुशी से ले लिया, अगर हम राजी हो तो नमाज पढ़ेंगे। उसने हमें रोजा दिया, तुम रोजा रखो, हम तुम्हें रोजा जैसी नेमत, हम अपने इस माहौल के एतबार से इसको ज़हमत कह लें, और उसने भी हमारे मिजाज को देख तो इसको नाम तकलीफ का दिया है। नेमत या रहमत नहीं, कि कहा तकलीफ है, और जब तकलीफ है तो इसका आदर भी होगा, इसका हम तुम सवाब भी देंगे। तो परवरदिगार आलम हमें एक एक चीज देता जा रहा है और पूछता जा रहा है, हम तुम्हें ये दे रहे हैं, तुम राजी हो कि नहीं? हमने तुमसे कुछ हुकूक मांगे हैं, खुम्स का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, तुम इस बात से राजी हो या नहीं हो? अगर राजी हो तो वो माल हमारी राह में खर्च करोगे वैसे जैसे हमने बताया है। हमने तुम्हें हज करने के लिए दिया, राजी हो या नहीं हो? नमाज दी, राजी हुए कि नहीं हुए? रोजा दिया, राजी हुए कि नहीं हुए? सारी नेमतें देता जा रहा हूँ, अब बताओ राजी हो या नहीं हो? अगर बंदा अपनी जिंदगी को मेरे अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है और बखुशी सारी चीजें ले रहा है, इसका मतलब यह है कि बंदा राजी है अल्लाह की सारी दाद और दहेज से। लेकिन अगर अंजाम नहीं दे रहा है, अपनी जिंदगी को अपने एतबार से गुजारना चाहता है, तो इसका मतलब यह है कि बंदा सब कुछ लेता तो चला जा रहा है, लेकिन अल्लाह से राजी नहीं है। तो लिहाजा आज का पैगाम यह है कि तुम्हें यह तलाश करने की जरूरत नहीं है कि अल्लाह राजी है या नहीं है, तुम बताओ कि तुम अल्लाह से राजी हो या नहीं हो। और यही तो फलसफा था जिसे दानाए आले मोहम्मद, आक़िले आले मोहम्मद जनाबे बहलोल दाना ने कब्र पे जाके समझाया। वो कोई इख्तिलाफ नहीं था जिसे इत्तेफाक और सुलह में तब्दील कराने की कोशिश की जा रही थी, बल्कि इसी फलसफे को समझाया जा रहा था। जनाबे बहलोल कब्रिस्तान पे गए और अपनी उंगलियों से इशारा कभी आसमान की जानिब कर रहे हैं, कभी कब्र की जानिब कर रहे हैं, जमीन की जानिब कर रहे हैं, कब्रिस्तान की तरफ कर रहे हैं। लोगों ने देखा, वहां पहुंचे, बहलोल आप क्या कर रहे हैं? जवाब दे कि इख्तिलाफ हो गया है, सुलह करा रहा हूं। इख्तिलाफ हो गया है, सुलह करा रहा हूं। क्या कोई किसके दरमियान इख्तिलाफ हुआ? किन दो लोगों के दरमियान झगड़ा हुआ जिसकी तुम सुलह करा रहे हो? आवाज दी बंदे और खुदा के दरमियान। ये बंदा जब तक इस कायनात में था, परवरदिगार आलम हर चीज देता गया। राजी हो कि नहीं? हमने तुम्हें नमाज दी, राजी हो कि नहीं? हमने तुम्हें रोजा दिया, राजी हो कि नहीं? ये बंदा कहता नहीं, राजी नहीं हूँ, राजी नहीं हूँ, लिहाजा न नमाज पढ़ी, न रोजे रखे, न हज किए, न खुम्स ज़कात दिया, और न जिंदगी की अपनी सारी जरूरतें परवरदिगार आलम के एतबार से सर्फ की। तो परवरदिगार आलम अब तक सारी चीजें देता जा रहा था, फिर भी इसी की मर्जी पूछ रहा था, इसी की रजा का तलबगार था। आज जब ये सारा कुछ खुदावंद आलम से नाराज होकर कब्र में चला गया है, अब ये तो राजी हो गया और कह रहा है, बाबा रे लहा, जिंदगी में जो कुछ तू दे रहा था और जिन जिन चीजों का तू मुझसे मुतालबा कर रहा था, मैं सारी चीजों से राजी हूँ, लौटा दे, सब करूंगा। अब वापस लौटा दे, सब करूंगा। तो अब ये बंदा तो राजी हो गया है, खुदा राजी नहीं हो रहा है। तो असीज़ गिरामी, परवरदिगार आलम अपने बंदों से कुछ मुतालबे देखो, अपनी जिंदगी को हमारे हिसाब से गुजारना शुरू करो। तो फिर
जब तुम हमारी तमाम चीजों से राजी हो तो तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि अल्लाह राजी है, क्योंकि अगर वो तुमसे राजी ना होता तो सारा कुछ तुम्हें देता ही नहीं। बगैर किसी जहमत के, बगैर किसी अमल के, बगैर किसी मुश्किल बर्दाश्त करने के उसने तुम्हें सब कुछ अता कर दिया है। अब वो चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी उसके हिसाब से हो और तुम इस जिंदगी पर राजी हो, तो फिर वो जो हमेशा वाली जिंदगी है जिसे जन्नत की जिंदगी कहते हैं, वो तुम्हारे लिए खुशी का मकाम होगा। और इसी मुआमले को और इसी सौदे को कि परवरदिगार आलम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान किराम, चूंकि ये साल असबाब की मजलिस है, इसलिए इस सिलसिले में जो 4 जुमले अदा करके रखते मसाइल चूंकि वक्त हो गया है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पुरसुकून जिंदगी। इंसान अगर इस कायनात में अपने लिए पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा है तो तन्हा उसकी यही एक जिम्मेदारी नहीं है कि खुद अपनी जिंदगी को पुरसुकून बना ले, और इस दुनियावी जिंदगी को पुरसुकून बनाने के जरिए से जाहिर है दुनिया की जिंदगी में उसी वक्त पुरसुकून होगी ना जब उसे यकीन हो जाए कि आखिरत की जिंदगी उसने पुरसुकून बना ली है। इस दुनिया की तो हैसियत ही क्या है, हमारी दुनियावी जिंदगी कोई वक्त नहीं, सिर्फ जरिया है आखिरत की जिंदगी को बेहतर बनाने का, इसके अलावा कुछ नहीं। किसी को नहीं मालूम कि आइंदा उसके साथ क्या होगा। लिहाजा हर वक्त इंसान तैयार रहे उस दायमी जिंदगी को खुशबख्त और अच्छी जिंदगी, बेहतर जिंदगी बनाने के लिए। तो इंसान कायनात में अपनी जिंदगी आखिरत वाली जिंदगी को खुशबख्त बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए जरूरी भी ये है कि वो हजरात जो इस कायनात से जा चुके हैं, हम इंसान जब तक इस कायनात में रहता है उसके अख्तियार में होता है, जितनी चाहे नेकियां कर ले, आखिरत में जितने चाहे अपने दर्जात बुलंद कर ले, अपने आप को जन्नती बना ले, जहन्नमी बना ले, लेकिन इस जब इस कायनात से चला जाता है ना तो बिल्कुल मजबूर हो जाता है, मोहताज हो जाता है। अब रवायतों के फिक्र है कि हर शब जुमा या जुमे के दिन ये रूहें आती हैं, खासतौर से माँ बाप, उसमें तो खासतौर से माँ, वो आती है और अपने बच्चों से कहती है उम्मीद भरी निगाहों से जो कुछ हमने कमाया था आज तुम्हारे हाथ में है, इसी में से हम चाहते हैं कि तुम हमें दे दो। इंसान अब बताए कितना मजबूर है, कल तक जिन कोठियों में, जिन बिल्डिंगों में शान शौकत के साथ रहा करता था, आज उसकी एक ईंट के लिए मोहताज हो गया है। तो लिहाजा हमारी जिंदगी, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम जिस तरीके से आखिरत की जिंदगी अपने लिए अच्छी बना रहे हैं, उसी तरीके से अगर उन्होंने अपनी आखिरत की जिंदगी बेहतर बनाने में कुछ कमी की है तो उसे हम पूरा करें। और उनमें से सबसे पहले वाजिबात है कि उनकी वाजिब जिम्मेदारियां क्या थी, कितनी नमाजें छोड़ी हैं, कितने रोजे छोड़े हैं, हज वाजिब था और उन्होंने नहीं किया, खुम्स और ज़कात के हवाले से कुछ शरई हुकूक थे वो उसने अदा नहीं किए हैं, तो जाहिर सी बात है वहां की जिंदगी उस दर्जे तक तो बेहतर नहीं है ना। जन्नत में अगर मोहब्बत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के एवज में और सिले में उन्हें जन्नत में दर्जा मिल भी गया है तो उस दर्जे का क्या फायदा जो आले मोहम्मद के दर्जे से दूर हो, और वहां तरक्की का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। आज इस दर्जे में है, कल दूसरे दर्जे में पहुंच गया, कल अब परसों और ऊंचा हो गया, नहीं, वहां पर आगे और पीछे बढ़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब आप बताएं कि एक बंदे मोमिन, एक मुहिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम, उसके दिल में कितनी ये चाहत होगी कि वो आखिरत में सोहबत इख्तियार करे तो उसकी इख्तियार करे, पूरी जिंदगी जिसकी मोहब्बत का दम भरता रहा हो। अब अगर कमी की वजह से, हमारी बदआमालियों की वजह से, कुछ वाजिब काम को छोड़ने की वजह से, चाहे हम दुनिया में यूं छोड़ के चले जाएं या वो लोग तो इस दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए उनकी जिंदा औलाद कुछ न करे तो अज़ीज़ान गिरामी कितनी शर्म की बात होगी। कम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम पूरी जिंदगी
नाम का दम भरते रहे, उनके नाम पर मातम और गिरिया करते रहे, लेकिन उनका दर्जा नसीब न हो, क्योंकि अमाल के एतबार से दर्जात मिलेगा, अकीदे के दर्जात के एतबार से इंसान को वहाँ दर्जा नसीब होगा। तो अजीज़ान गिरामी, वो माँ बाप, वो बुजुर्गान जो हमें इस दुनिया में छोड़ कर चले गए हैं, वो हमारी जिम्मेदारी पर है। बचपन में थे, उन्हें जब भी हमारी किसी की जरूरत का एहसास हुआ, क्या उन्होंने हमें कमी होने दी? बच्चा प्यासा है, जैसे ही माँ बाप को एहसास हुआ पानी बढ़ा दिया, गर्मी में है पंखे का इंतजाम कर दिया, सर्दी में है हीटर का इंतजाम कर दिया, कुछ भी हीटर न हुआ तो अपने कलेजे से लगा दिया। माँ रात भर जागती रही, बच्चे को सुलाती रही, तो क्या उनका अब इतना भी हक नहीं बनता है कि वो इस कायनात से जा चुके हैं, वहां दो कर्ब में मुब्तला है, उनके लिए ये औलाद कुछ करे? और अज़ीज़ान गिरामी, याद रखें, हमारे और आपके सोचने की बात तो अलग है, रवायतों का जिक्र है कि अगर कोई औलाद अपने माँ बाप की फरमाबरदार थी, जिंदगी में उसकी जरूरतों का ख्याल रखा भी है, लेकिन मरने के बाद उनकी जानिब तवज्जो नहीं किया, उनकी जिम्मेदारियों को अदा नहीं किया, तो परवरदिगार आलम उसे नाफरमान दिखता है, उसे आग नहीं देता है। वजह क्या है? वजह यह है कि जब वो कायनात में अपने लिए सब कुछ कर सकते थे, उस वक्त तो तुमने उनका साथ दिया, खिदमतें की, जबकि ये दुनियावी खिदमतें फानी की, खत्म हो जाने वाली थी। असल मोहताज और जरूरतमंद तो अब जाकर को हुए हैं, तो जब अब हुए हैं तब जरूरत इस बात की है कि इस मोहताजी का ख्याल रखा जाए। और इसके बरक्स से भी वही मामला है कि अगर कोई औलाद कायनात में इस दुनिया में उनकी जिंदगी में फरमाबरदार तो रही है, नहीं वो फरमाबरदारी नहीं कर रही थी, इताअत गुजार नहीं थी, जरूरतों का ख्याल नहीं रख रही थी, लेकिन जब वो इस दुनिया से चले गए तो उसको एहसास हुआ कि मेरे माँ बाप वहाँ मोहताज हैं, उन्हें हमारी जरूरत है, लिहाजा उनके वाजिबात को अदा करना शुरू किया, उनके जिम्मे जो हुकूक थे वो अदा करना शुरू किया। अब परवरदिगार आलम आवाज देता है कि जिस नाफरमानी की वजह से इनके वालिदैन ने इनको आग करार दे दिया था, अब वो असल जिंदगी, असल जरूरत के वक्त ये उनके काम आ रहा है, लिहाजा के फरमाबरदार लिखा जाएगा। तो परवरदिगार आलम ने ये दर्जा अता किया है और कि इस सवाब और अज्र से नवाजा है कि देखो माँ बाप की खिदमत किस तरीके से करनी चाहिए। और अज़ीज़ान गिरामी, ख़ास तौर से अगर बाप ऐसा हो जो अल्लाह की तरफ से नुमाइंदगी पर मशहूर हो। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे और आपके तीसरे इमाम जो इस आया करीमा में नफ्स मुतमइन्ना के आमिल है, करबला के रास्ते में जा रहे हैं, एक मकाम पर वो भाई तो जुबान से कलमा इस्तिरजा जारी हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे ही ये जुमला जारी हुआ, आपके फर्जंद, जाहिर है ये कलमा इस्तिरजा, ये कलमा मौत है, कलमा शहादत है। चाहने वाला बेटा अली अकबर, जैसे उन्होंने ये आवाज सुनी, ये जुमला सुना, इस आया करीमा की तलावत की, आवाज दी, बाबा ये कौन सा कलमा आप अदा कर रहे हैं, इस मकाम पर कौन सी मुसीबत आने वाली है? आवाज दी, बेटा अभी मेरी ऊँग आई थी कि इतने में किसी हाथ पे गैबे से आवाज आई कि ये काफिला मौत की जानिब बढ़ रहा है, इसलिए मैंने ये जुमला इरशाद फरमाया। आवाज दी, बाबा इतना बता दें कि क्या हम हक पर हैं या नहीं हैं? इमाम ने फरमाया, अगर हम हक पे ना होंगे तो फिर कौन हक पर होगा? जैसे इमाम का जुमला जनाब अली अकबर ने सुना, आवाज दी, बाबा जब हम हक पर हैं तो फिर मौत से डरना कैसा है? हाँ ज़हरो, ये वो चाहने वाला फर्जंद है जो माँ का भी चाहता है, बाप का भी लाडिला है। जब मैदानी करबला में ये नौनिहाल अपने बाबा की खिदमत में आया इजाजत कारसाल लेने के लिए, लेकिन जब इजाजत मिल गई तो आजादारो, ये नौनिहाल, ये कमरे बनी हाशिम, ये खानदान बनी हाशिम का चश्मो चिराग खानदान बनी हाशिम, जब ये मैदान कारजार में गया तो आजादारो जरा गौर करें, माँ के दिल की क्या तमन्ना होगी, बाप के हौसले क्या होंगे, बाप के बलबले क्या होंगे। बाप हैं तो अपने बेटे की जंग को देख रहे हैं, खैमे से
کبھی آقا کا چہرہ دمکتا تھا تو جناب ام لیلا سمجھتی تھی میرا لال آگے بڑھ رہا ہے، کامیاب ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی آقا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، لیلا تڑپ گئی، آواز دی آقا کیا ہوا، میرے لال کی خیر تو ہے؟ جواب دیا کہ نہیں ام لیلا، ایک جوان ہے، ایک جنگجو بکر ابن غانم آ رہا ہے میرے لال سے لڑنے کے لیے، جاؤ خیمے کے اندر جاؤ، اپنے لال کے لیے دعا کرو۔ ہاں زادارو، جناب ام لیلا نے ایک مرتبہ بارگاہ پروردگار میں ہاتھوں کو اٹھایا، آواز دی، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرے لال کو مجھ تک واپس لوٹا دے۔ ہاں زادارو، جناب ام لیلا کی یہ دعا قبول ہوئی، جناب علی اکبر بکر ابن غانم پر کامیاب ہوئے، سر کو قلم دیا، مولا کی خدمت میں آئے، آواز دی، بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں ہی نفسیہ کو دکھا دیتا کہ خاندان بنی ہاشم کے خون کی تاثیر کیا ہوتی ہے۔ اے بابا العطش قد قتلنی، اے بابا پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے، لوہے کا بوجھ مجھے تھکا دے رہا ہے۔ آقا نے فرمایا بیٹا جاؤ تھوڑی دیر اور جنگ کرو، نانا رسول خدا تمہیں جامع شیری سے سیراب کریں گے، جس کے بعد کسی پیاس کا احساس نہ ہوگا۔ ہاں ذرو اب مصاحب کے جملے ہیں، جناب علی اکبر میدان جنگ میں گئے، صاحب مصاحب اہل بیت لکھتے ہیں دمائے ثاقب اور مقتل مکرم کے حوالے سے کہ جب جناب علی اکبر جنگ کر رہے تھے 200 جنگجوؤں کو اور کافروں کو ناواصل جہنم کیا، قتل کیا، اور اس کے بعد جب آگے بڑھتے جا رہے تھے تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میری بغل میں ایک ملعون کھڑا ہوا تھا جس کا نام مرہ ابن منقذ تمیمی تھا، وہ کہتا ہے کہ اگر یہ نوجوان میرے پاس سے گزرا تو میں اس کو وہ سبق سکھاؤں گا کہ اس کا باپ اس کے غم میں روئے گا۔ ہاں یہ بے ادب خاندان اہل بیت کے متعلق آزاد ہو، حمید کہتا ہے اتنے میں میسرے اور میمنے پہ حملہ کرتے ہوئے جناب علی اکبر جیسی ہمارے پاس سے گزرے، اس ملعون نے سینے پر وہ نیزہ مارا کہ جناب علی اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، جھک گئے، گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ ہاں زادارو، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا، گھیرنے کے بعد روایتوں کا فکر ہے وَقَطَعُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، انہیں چاروں طرف سے گھیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ جناب علی اکبر نے آخری آواز دی، اے بابا وعلیک منی السلام، بابا پر میرا سلام ہو۔ بابا نانا رسول خدا نے جامع توبت سے سراب کر دیا ہے اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی جلدی آئیے۔ ہاں ذرو، اس کے بعد ایک چیخ ماری، روح کا فسون سوری سے پرواز کر گئی۔ جناب سکینہ کہتی ہیں عزادارو، امام حسین علیہ السلام مظلوم کربلا کی کیفیت کو دیکھیے، کیسے جوان بیٹے کا غم برداشت کیا۔ جناب سکینہ کی زبانی سنیے، اور رخصت ہوتا ہوں عزادارو، جیسے ہی جناب سکینہ کہتی ہیں جیسے ہی میرے بھائی علی اکبر نے میرے بابا کو یہ آخری آواز دی ہے نا، تو میرے بابا کی حالت یہ تھی، کبھی بیٹھ جاتے تھے، کبھی کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی بیٹھ جاتے تھے، کبھی کھڑے ہو جاتے تھے، اور آواز دی، واہ ولدا، ہائے میرے لال، ان ظالموں نے خاندان رسالت کا پاس ہونے ألا رأيت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا من يجيبون۔ آپ ذرا سا گزارش ہے کہ ایک بار سورۃ حمد اور 3 مرتبہ سورۃ حمد کی قرأت کرنا کریں، ان مرحومین کی اربعۃ الانصار کریں، محمد غلام حسین مومن، امین غلام حسین مومن، شاہد آباد احسن علی مومن، سکینہ بین غلام حسین مومن، احمد حسین بھائی مومن، شریف بین محمد بھائی مومن، ان کی ارواح کو حاصل کریں۔
بہرحال ہمارے اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت سے عطا فرما. بہرحال جن مرحومین کے سال اسلاف کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے ان کے درجات میں اضافہ فرما. انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما. ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. ان کے اعمال صالحہ کو قبول فرما اور ان کے پسماندگان ان کی اولاد کو یہ توفیق عطا کر کے ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عمل کر سکیں. اور جن واجبات جو واجبات ہماری حقوق شرعی ہوں یا غیر شرعی ہوں لوگوں کے ہوں بہرحال ان کی اولاد کو ان کے اوپر جو حقوق عبادات وغیرہ رہ گئے نماز روزہ یعنی یہ توفیق عطا کر کے یہ ان کے ذمے سے بری کرے اور ان کی ادائیگی کی انہیں توفیق عطا فرما. بہرحال ہم سب تیری بارگاہ میں بارگاہ میرے مومن علیہ السلام میں تیری بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں. ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما. بہرحال ہمیں گناہان صغیرہ و کبیرہ سے کو بخش دے. بہرحال ہماری جو حاجت ہے ہماری حاجتوں کو پوری فرما. بہرحال ہمیں جو بیمار ہے ان کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما. بہرحال ہمارے زمانے کو ضرور میں تعجیل فرما. ہمارے عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے اصلاح بنا کہ ہمیں ہمارے امام اپنے ناصروں سے فرما.